spectrum disorder. These are all research-based evidences to improve ASD preventive guidelines. So basic focus will be on environmental risk and protective factors. Whenever we talk about risk factors, it means कि ये वो factors हैं जो कि prone बनाते हैं किसी भी individual को कि ये contributing factors हैं in autism spectrum disorder. जबकि उसके साथ साथ जब हमें environmental risk factors का पता चल जाएगा of ASD, तो then हमारे लिए उसके protective factors जो हैं उनको identify करना बड़ा आसान है. Okay, what is autism spectrum disorder? It refers to a group of complex behavior disorders of varying severity characterized by manifestation noted in early childhood. और usually ये जो autism spectrum disorder है, इसको इसलिए autism spectrum disorder कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से broader symptoms जो है आ जाते हैं और वो complexity wise जो है वो vary करते हैं, ये severity wise वो vary करते हैं. और ये जो symptoms हैं, ये autistic children especially जिसका autistic बनी है उनके at or before age 3 years जो है वो डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं. और ASD is defined as इसमें जो multiple symptoms हैं ASD के वो impaired social communication से लेके restricted interest and repetitive behaviors जो हैं they are the major symptoms or feature of autism spectrum disorder. Okay, when we talk about etiology of ASD, etiology means कि कौन-कौन से factors हैं जो कि autism spectrum disorder में role play करते हैं. उसमें हमारा focus 3 factors पे होते हैं mainly, that is genetics, epigenetics and last one is environmental factors. अब genetics को मैं already explain कर चुकी हूँ कि means कि हम कहते हैं कि विरासती तौर पे ये जो genes हैं उनका main contributing role होता है in any developmental disorder and also in ASD. लेकिन उसके साथ साथ epigenetics जो है that is also one important contributing factors. हमारे बहुत सारे ऐसे behaviors जिसमें हमारे environment भी है वो हमारे genetic composition जो है उसको change कर सकता है. तो genes अपनी जगह लेकिन साथ साथ different other factors हमारे अपने behavior as well as environment it also influence our genetic makeup. That study is actually known as epigenetics और environment solely. तो 3 factors हमारे सामने आए जो कि main contributing factors हैं genetic, epigenetic as well as environmental factors. Okay, unlocking the causes of these complex developmental disorders require a collaborative work. Collaboration of experts, जैसे कि मैडम रिफत ने हाईलाइट किया कि it should be a collaborative work और इसमें collaboration किन experts की हो सकती है. For example, clinical psychologists or clinicians should be there. Environmental experts can also play a role. Then bioinformatics, informaticists जो है वो भी अपना role जो है play कर सकते हैं. इसके अलावा computer scientists and geneticists. तो ये एक टीम वर्क की जरूरत है. इसमें एक और मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे एक्सपर्ट मेरा ख्याल है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनका भी अपना रोल. नेक्स्ट. ओके, अब कौन-कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं? देयर आर मल्टीपल. अब जो स्टडीज हैं डिफरेंट जो ASD रिलेटेड स्टडीज हुई हैं फॉरेन कंट्रीज में क्योंकि ये ज़्यादातर जो लिटरेचर है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो US बेस्ड और UK बेस्ड है. PubMed के कुछ जर्नल्स हैं एंड पे रेफरेंसेस भी दिए गए हैं. तो उसकी एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन जो है वो ASD में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि प्रीनेटल इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स हैं. अब यहाँ जितने मैं फैक्टर्स की बात करूँगी वो कंसेप्शन पीरियड से लेके जब एक फीमेल कंसीव करती है उससे लेके और उसके बाद पेरीनेटल और प्रीनेटल और पोस्टनेटल फैक्टर्स हैं. तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं ना कि पेरेंटिंग जो है ये आसान नहीं है. पेरेंटिंग जो है पेरेंट बनने से पहले ही हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ जाती हैं और उसमें कौन-कौन से फैक्टर हैं प्रीनेटल? उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है. मीन्स की जो ऑक्सीजन है उसकी प्रोडक्शन और इसके अलावा फर्दर जो है उसमें किसी किस्म की उसकी एक्यूमुलेशन में मैलफॉर्मेशन हो तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है जनरेट होता है और ये नॉर्मल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है एज वेल एज इन्फ्लेमेशन इज अनदर फैक्टर. नेक्स्ट वन इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोजर टू ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर है और ये फॉरेन कंट्रीज में पहले था लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एयर पोल्यूशन जो है ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है. स्पेशली जैसे लाहौर में स्मोक का इशू है. ठीक
ठीक है, एज वेल एज सिर्फ ये लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के और भी बहुत सारे सिटीज में इसको इशू है जो कि ट्रैफिक पोल्यूशन की वजह से ही जनरेट होता है। इसके अलावा प्री नेटल डेवलपमेंट में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो दैट कैन बी अनदर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। एक रिसर्च है which is done by Wolf. He said that children with autism were more likely to have highest exposure to traffic-related air pollution during their gestation period and especially the first year of life as compared to the non-autistic children. तो ये proven बात है कि जो air pollution है, it can cause various autistic features among the children as compared to the control group. Next. ओके, एपिजेनेटिक्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एपिजेनेटिक्स क्या होता है। एपिजेनेटिक्स बेसिकली यही है कि हमारे जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं वो एक्चुअली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो एक तरह से हमारे जो जेनेटिक मेकअप है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करेंगे तो उसका हमारे जीन्स पे एक पॉजिटिव जो है वो उसका रोल होगा। नेक्स्ट, the potential pathogenic role of environmental factors on the interaction with genetic is well based, is very well studied और उसमें multiple factors जो है वो इमर्ज हुए हैं। ये कौन से फैक्टर्स हैं इसकी आगे जाके हम डिटेल भी थोड़ी सी देखते हैं। फर्स्ट वन इज द एडवांस पेरेंटल एज, नेक्स्ट वन इज मैटरनल स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे हमने IVF की टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। Then nutritional factors, maternal infections and diseases, and furthermore environmental chemicals and toxicants, and the use of medication during pregnancy. Next. अच्छा, ये एक glimpse है या आप इसको कह लें कि ये overview है, which is given कि एक female जो कि who don't have a particular genes which play a role in AST, and there is a female जो कि एक हेल्दी बेबी कैरी करती है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, पहले हम रिस्क फैक्टर्स की तरफ देखते हैं जो कि इस इधर हाईलाइटेड हैं। उसमें सबसे पहले एडवांस पेरेंटल एज है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। इफ द एज इज 35 और मोर देन वो फीमेल दे आर एट हायर रिस्क ऑफ कैरिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ओके, देन एडवर्स एनवायरनमेंट, ये एडवर्स एनवायरनमेंट फैमिली एनवायरनमेंट भी हो सकता है और ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है। शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी स्पेसिंग, यूजुअली 1 year लेस और या फिर 3 years लेस स्पेसिंग हो अगर बिटवीन चाइल्ड, तो उसको एक रिस्क फैक्टर कहा जाता है फॉर हैविंग एन ASD। मैटरनल स्ट्रेस इज अनदर वन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर ASD। improper diet, alcohol, smoking consumption, viral bacterial infection of mother, then different comorbidities of different illnesses, then gynecological interventions, then cesarean delivery. ये सारे के सारे these are considered as the risk factors. इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी नजर आते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर वो हैं जो कि बच्चों को या हम सेफ साइड समझ सकते हैं ऑटिज्म से बचने के लिए, ठीक है। वो कौन कौन सी है? उसमें अगर मदर एज 35 और मोर होने के लिए, तो इधर वही एज आप देख सकते हैं, इट इज ऑफ 20 to 32 years कि अगर मदर इस एज में कंसीव करती हैं तो दे आर ऑन सेफर हैंड। ओके, नेक्स्ट वन फेवरेबल एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट डेफिनेटली फैमिली एनवायरनमेंट भी है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। एडिक्वेट इंटर प्रेगनेंसी स्पेसिंग, अ पॉजिटिव फैमिली बैकग्राउंड, no assisted reproductive technologies are being used and proper maternal diet। इसलिए जो है वो अगर unsaturated फूड अगर यूज की जाए तो इट इज मोर सेफ और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाए जिसमें फॉलिक एसिड का यूज है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए अगर उसको सप्लीमेंट्स दी जाए तो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल ड्यूरिंग दिस पीरियड। विटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन इनटेक है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ऑफ द मदर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Then good maternal health is another protective factor। Melatonin का यूज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि यूजुअली स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ये ASD बच्चों को वैसे भी दिया जाता है उनके स्लीप पैटर्न्स को बेहतर बनाने के लिए एज ए सप्लीमेंट। देन नॉर्मल डिलीवरी। सो इसमें इस चार्ट में आपको रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी मिलते हैं। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आपको एक तरह से ये यहाँ पे बताने इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस में स्टूडेंट्स के अलावा ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए
फैक्टर्स का जानना और साथ साथ जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं इनका पता होना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी चाहिए कि पेरेंट्स की इन पॉइंट्स पे जो है उनको पेरेंट्स को साइको एजुकेट करें स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें पता हो कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं ASD के लिए और कौन से इसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ASD prevalence seems to be increasing और ये US based statistics है जिसमें मैंने बताया कि 1 in 59 8-year-old children are autistic। और इसी तरह से I have seen a research which is of 2019 research in Pakistan। ये वाला जो रेशियो है ये they have taken 1889 individuals, adult psychiatric individuals लिए और उन्होंने उनकी assessment की different autistic measures पे and they have seen कि उसमें से 8.6% जो individuals थे उनमें autism की प्रॉब्लम है, तो ये एक alarming rate है। Next. Recent studies have demonstrated that during critical period of CNS development, early exposure to variety of environmental factors, from chemicals to physical agents, can affect neurobiological development, including effects relevant to ADHD. अब आप देखें कि जो ऑटिज्म है इसके पीछे चूंकि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि जो नर्वस सिस्टम है बच्चे का उसके साथ जो स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट अगर वो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो रही तो इसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल मैलफॉर्मेशन है वो जनरेट हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दौरान एक इंडिविजुअल को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली मदर्स को अपनी फर्दर ताकि मदर्स जो है वो फर्दर रिस्क फैक्टर से बच सकें जो कि उस बच्चे के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लें, इसी टेबल की सारी जो है पॉइंट्स को डिस्कस किए गए। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ ASD, देयर आर मल्टीपल। सबसे पहले एडवांस पैटर्नल एज, नॉट ओनली मदर्स एज बट फादर्स एज एज वेल। और उसमें क्योंकि जैसे जैसे एज इनहांस होती है या एज लेवल घटता है वैसे वैसे यूट्रस जो है उसका एनवायरनमेंट लेस फेवरेबल होता है टू कंसीव। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ वेरियस हार्मोन्स एंड अदर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने IVF की बात की, तो इसके थ्रू जो कंसेप्शन होती है या मदर्स कंसीव करती हैं वहाँ के चांसेस कि ASD होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्रीट्रिजल है, हार्मोनल स्टिमुलेशन, एक्सपोजर टू कल्चरल मीडियम, माइक्रो मैनिपुलेशन ऑफ गैमेट्स और ICS, ये डिफरेंट इस तरह की टेक्निक्स हैं कि आर्टिफिशियल मेथड से इसकी कंसेप्शन होती है। तो यहाँ पे फिर ASD के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज environmental, chemical and toxicants such as pesticide, traffic related air pollution and neurotoxicity can be another one. Next. इसी तरह से maternal nutritional status जिसमें अभी SSRIs here, which is selective serotonin reuptake inhibitors. Next. Prenatal period में भी environmental, chemical and toxins are the risk factors like air pollution है, material used in plastic industry, pesticide and different heavy metals. Air pollution जो है उसमें अगर ये depend करता है कि वो individual जो type of pollution कैसी है उसका time of exposure क्या है और इसके अलावा किस हद तक जो है वो उस इंडिविजुअल को एक्सपोजर है पोल्यूशन। और इसी तरह से पेस्टिसाइड्स में भी जो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स हैं ये ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू अदर सॉर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट देन फेरेट्स है विच इज क्लास ऑफ केमिकल जो कि यूजुअली मेडिसिन की कोटिंग के लिए यूज होता है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स में यूज होता है। नेक्स्ट हैवी मेटल एक्सपोजर ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड एज वेल एज जो इवन के यहाँ पे एक आपको थर्ड पे पॉइंट नजर आ रहा है कि अगर मदर ने डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है और उसकी सिल्वर जो है फिलिंग करवाई है तो इवन वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकेशंस जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मूड स्टेबलाइजर्स हो या एंटीडिप्रेसेंट्स हो तो वो हार्मफुल है। नेक्स्ट substance abuse, alcohol, coffee, tea consumption as well as heavy tobacco use, cocaine हमारे यहाँ पे भी लेकिन फॉरेन कंट्रीज में है एक रिस्क फैक्टर। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में फॉलिक एसिड, विटामिन
विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, हाई फैट डाइट और पूरा ओमेगा 3 जो है ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट ओके, और पेरीनेटल या अर्ली पोस्टनेटल पीरियड की तरफ अगर हम जाएं तो माइक्रोबायोम जो है विच इज गट माइक्रोबायोम, यानी अगर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो जाए ड्यूरिंग पेरीनेटल या पोस्टनेटल पीरियड, तो वो भी इवन के बच्चे को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरफ आते हैं, मल्टीपल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, टेबल पे देखते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल प्रोटेक्टिव फैक्टर ज़्यादा हाईलाइटिंग है, जिसमें बताया गया है कि फॉलिक एसिड की एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है कितनी अमाउंट लेनी चाहिए, दैट इज बीन हाईलाइटेड। फैटी एसिड और स्पेशली अनसैचुरेटेड जो फूड है फैटी एसिड है वो लेना चाहिए, विटामिन डी, आयरन प्लस ब्रेस्ट फीडिंग, मेलाटोनिन एंड फर्दरमोर पोस्टनेटल पीरियड में भी ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यूजुअली अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो वर्किंग है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती बच्चों को, हार्डली वो 3 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड करवाती हैं और उसके बाद they didn't focus on that, तो बच्चों को जो है डिफरेंट आर्टिफिशियल जो है वो दिया जाता है, तो which is also dangerous. Next, evidence based clinical recommendations are also there कि हमें फिर ये हमें कैसे गाइड करते हैं towards intervention. Yes. उसमें प्री कंसेप्शन पीरियड में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसको मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी बिकॉज आई एम गेटिंग आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि आपको फीमेल को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना वेट जो है उसको मेंटेन रखें, क्योंकि अंडर वेट और ओवर वेट बोथ आर डेंजरस। नेक्स्ट, उन्हें डिफरेंट जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड। नेक्स्ट ओके, और जो प्रीनेटल पीरियड है उसमें क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, स्पेशली इस रेफरेंस पे क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए बिकॉज स्टडीज हैज सजेस्टेड कि वो फैमिलीज जिसमें ऑलरेडी ऑटिस्टिक बच्चे हैं या ADHD के साथ बच्चे हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए बिफोर कंसेप्शन। और उसके लिए पाकिस्तान में तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एज सच, लेकिन जैसे अमेरिका है वहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग इज देयर, तो जेनेटिक काउंसलिंग जो है अगर यहाँ पे फर्ज करें वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको चाहिए कि वो एडवाइजरी कोई कमेटीज़ बनाएं ताकि वो कमेटीज़ इस तरह के पेरेंट्स को जो है उनकी कोलैबोरेशन करवा सके वहाँ पे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। ओके, नेक्स्ट, और जो पेरीनेटल या अर्ली पोस्टनेटल पीरियड है उसमें भी सिमिलरली यही है कि क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए उन इन्फेंट्स के लिए हुआ है हाई रिस्क, उनके जो है वो एनुअली या मंथली उनके चेकअप्स होने चाहिए, एज वेल एज जो मदर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए, नॉट ओनली विद ASD बल्कि उसके अलावा जो बाकी डिसेबिलिटीज़ हैं जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है या बाकी जो सिंड्रोम्स हैं, वो पेरेंट्स जिनके ये बच्चे हैं दे आर एट हाई रिस्क, तो उन्हें आगे हमें फर्दर गाइडेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। दीज आर वेरियस रेफरेंसेस जहाँ जहाँ से रिसर्च की गई और जहाँ से इन फैक्टर्स को जो है वो इकट्ठा किया गया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी एंड में जाके पॉइंट कि आप देखिए कि स्मोकिंग के लिए पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलती है टीवी पे, अभी तो कम ही आते हैं मैसेजेस, लेकिन इसी तरह से मेरा ख्याल है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी इस तरह की पब्लिक कैंपेन्स चलनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इनका प्रेवलेंस रेट जो है वो अलार्मिंग हद तक जो है वो बढ़ रहा है। तो व्हाई नॉट कि इस तरह से रिस्क फैक्टर्स या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स से रिलेटेड कोई ब्रीफ जो है क्लिप्स चलाए जाएं या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो मीडिया पे दिए जाएं जो कि पेरेंट्स में अवेयरनेस जनरेट कर सकें रिगार्डिंग ASD, रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एज वेल एज उसकी बेस पे बताया जाए पेरेंट्स को कि इफ़ दे वांट टू कंसीव या उन्होंने जो है उससे फर्दर उन्हें अगर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए इसके बारे में, तो ये इसके बड़े पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट मिल सकते हैं। थैंक यू।